ऑलरेडी। दिस इज अजयपाल सिंह फ्रॉम वेस्टर्न रिजर्व अकेडमी पात्रा। आज आप गल करन जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। इन दिस यू आर गिवन अ प्रॉपर स्टेटमेंट अलोंग विद 4 ऑप्शंस इन विच obviously one option is correct, other 3 are totally wrong, irrelevant, distractor, similar to the answer, or I can say totally irrelevant. So ये चीज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ find out ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ lot of students are facing lot of problems, confusion ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ proper method ਕੀ ਹੈ, proper technique ਕੀ ਹੈ, what is the proper strategy to solve this very accurately or in a very less or no time. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ strategies ਦੀ। So let's talk about the strategies of MCQ. Read the question carefully and underline keywords. सब तो पहला कि आप क्वेश्चन पढ़ना है, आप पैराग्राफ दे विच बाद चो जाना है। पहला आप क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन पढ़ना है आप प्रॉपरली, फिर अंडरलाइन कीवर्ड्स। ये ਜਿਹੜੇ कीवर्ड्स ने इन्हां कीवर्ड्स ਨੂੰ अंडरलाइन कर लो। कीवर्ड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अंडरलाइन कर लिया, फिर ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। जो तुसी कीवर्ड मार्क किया वो कीवर्ड तुसी माइंड दे विच सोचना है, क्योंकि ओही तुसी सेंटेंस सॉरी ओही थोड़ा जिहड़ा कीवर्ड है ओही तुसी पैराग्राफ दे विचों लभना, वो तुहानूं मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की गल करिए हले आप ऑप्शन दे विच नहीं गए। सो ये जिहड़ा कीवर्ड है ये कीवर्ड तुसी कोई भी चूज किया मे बी इहदी चांसेस बहुत घट ने कि तुहानूं एज इट इज तुहानूं मिल जाए। ओके, अगर तुहानूं नहीं मिलता तो इहदे तुहानूं की है सिनोनिम्स मिल सकते हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ that might be in the text, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸੋਚੋ, ਰੀਡ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀਵਰਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ABCD ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 3 ਗਲਤ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਕਿ you are doing reading for a reason, ਤੁਸੀਂ रीडिंग किसी रीजन ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ओके, एंड अंडरलाइन द कीवर्ड, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ओके, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रीड द टेक्स्ट यूजिंग कीवर्ड्स, ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ on the basis of these keywords from the options ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ मीनिंग ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ओके, that may contain the answer, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ मीनिंग ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਔਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆਊਟ ਆਫ 4 ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ योर ਆਨਸਰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ योर कीवर्ड्स, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ योर ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੇਂਜ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ माइंड दे विच भी। हाँ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 6 eliminate other options which are wrong. suppose ABCD ਹੈ, ਤੁਸੀਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, BCD ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਨੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਪੋਜ਼ A B C D, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ A ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ 7th ਸਟੈਪ ਹੈ, 7th ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ रीड द क्वेश्चन अगेन बिफोर यू मेक योर फाइनल चॉइस। ये चीज की टेंशन ना लो कि 7 स्टेप्स ने भी मैं किद्दां करूंगा ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਮੇਕ ਯੋਰ ਫਾਈਨਲ ਚੋਇਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਓਕੇ, फिर आप क्वेश्चन ਨੂੰ देखो, क्वेश्चन एक नहीं दो तीन क्वेश्चन देखो, फिर उन्होंने ऑप्शंस देखो, इट्स द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम।
ओके ये टाइम की वेस्टेज है, सो आप ये चीज़ नहीं करनी। ਇਹਦੀ प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है। कोई भी काम तुसी करते हो, रीडिंग ही नहीं, कोई भी काम तुसी करते हो लाइफ का बिना स्ट्रैटेजी तो वो काम पूरे नहीं होंगे। ओके आप तो करे रीडिंग रहे हैं, आई डोंट थिंक सो के people can imagine, even I cannot imagine reading without strategy or techniques। और talking about tips ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। What is the negative effect of rice? ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਈਸ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਹੋਏਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। more than half the global population relies means depend। अगर उसका मीनिंग नहीं भी पता तब भी कोई गल नहीं, सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरीके नाल हुंदी है, कई बारी आपां नूं समझ आ जांदा है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग। relies on rice as a regular part of their diet। नहीं हले तक आपां नूं मीनिंग नहीं मिलिया, सो आप आगे चलांगे। बट राइस पैडीज, राइस की जिहड़ी खेती है, ओके, हैव अ डाउनसाइड फॉर द planet too। planet की गल करिए, प्लैनेट दे भी इत्थे भी दी गल हुई है, डाउन साइड। ओके सो डाउन साइड की है जी, डाउन साइड अपना नेगेटिव। ओके सो आपां नूं क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। हुण आपां की करना है, अपने थर्ड स्टैप जो अपना है, ओके थर्ड स्टैप अपना की है, ये ऑप्शंस ने, ऑप्शन नूं वन बाय वन इसनूं रीड करो। जिस तरीके नाल आपां क्वेश्चन कीता है, उस तरीके नाल आपां ये करांगे जिस तरीके नाल आपां स्टेटमेंट कीती है। ऑप्शन नूं रीड करो। इट इज रेगुलर पार्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन's डाइट। सो इसनूं की करांगे आपां, रेगुलर पार्ट। सो फर्स्ट कीवर्ड अपना ये है, सेकंड कीवर्ड अपना ये हो गया। हुण आपां की करांगे, मूव ऑन टू द टेक्स्ट, फिर आपां फाइंड आउट करदे कि नाल दा कोई मिलदा कि नहीं मिलदा, आंसर सही है या करेक्ट है, इररेलेवेंट है, ओपोजिट है और डिस्ट्रैक्टर है और डाइवर्जन अपने लिए। आपां देखदे हैं की है। देखो मोर देन हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिलाइज ऑन, देखो हाफ मिल गया, हाफ मिल गया। ओके रेगुलर पार्ट की गल हुई सी, रेगुलर पार्ट भी मिल गया। ओके वर्ल्ड पॉपुलेशन डाइट, डाइट आ गई, वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन, तो सारा कुछ आ गया। सो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन दे विच उन्होंने गल करी है नेगेटिव दी। क्वेश्चन दे विच उन्होंने अपने तो नेगेटिव पूछा है, बट ये चीज की है पॉजिटिव दे विच है। सो ए आंसर नहीं है, इसनूं आपां एलिमिनेट कर दिता ऑलरेडी। सो इसनूं छड्डो। ऑप्शन नंबर बी प्लीज। राइस पैडीज, पैडीज मतलब खेती, चौलों की खेती। राइस पैडीज एमिट, बाहर कढ़ना, एमिशंस भी उत्थे हैगा एक वर्ड। पैडीज एमिट मोर मीथेन दैन कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग दी इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है, कोले दी जिहड़ी इंडस्ट्री है उस तो वध कि जिहड़ी चावलों की खेती है वो ज्यादा मीथेन नूं एमिट करती है। सो आप देखते हैं इहदा कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, हो सकता है। ओके सो इहदा राइस पैडीज हो सकता है और मीथेन हो सकता है। एक कीवर्ड मे बी आपां नूं सारे ही मिल जाने दे विच। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन प्लीज। But rice paddies have a downside for the planet too. They produce as much as 70% of the world's total methane emissions। एमिशन तो देखो मिल गया आपां नूं, एमिशन एमिट, बट जो चीज आपां नूं चाहिए वो चीज हाले तक आपां नूं नहीं मिली। सो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। दैट इज इवन मोर देन कोल माइनिंग एमिशंस। सो कोल माइनिंग आ गया अपने को। सो आ वर्ड अपने को आ गया जी, विच मेक 10% ऑफ टोटल। सो इथे जो मीनिंग है ਆਪਾਂ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ दैट इज इवन मोर देन कोल माइनिंग एमिशन तो ज्यादा है। बट केड़ी चीज ज्यादा है वो इथे इन्होंने इस चीज डिस्क्राइब नहीं की हुई, ये सिर्फ हाईलाइट है अपने लिए। जो आप आंसर लभ रहे हैं वो आंसर नहीं हैगा। ओके सिमिलर आ गया जिवें आपां जब मैं तुहानूं समझाया सीगा कि 7 स्टेप्स ने, इस तरीके नाल तुसीं समझ सकदे हो। सो ये चीज की है
ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਮੋਰ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ C. Its plantations produce 17% of the world's total methane emissions. So अपना सब तो पहला अपना कीवर्ड की है जी, ਜਿਹੜੇ फिगर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Plantation 17% of the world's total methane emissions. Okay, so ਇਸ 17 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, जिस तरीके हो गया सो क्रिस्टल जेनसन। सो ये नेम जो आप एक बार पढ़ ले, आप इन्हों प्लीज अंडरलाइन कर लिया करो। सो अगे जाके जो अपने को कोई नेम आवे अपन बिल्कुल याद रहे कि ये चीज उत्थे पई है। ओके, अपना टाइम बचता ये चीज़ों के विच। ओके, सो इत्थे इन्होंने गल करी है बट राइस पैडीज हैव अ डाउन साइड दा अपन नेगेटिव इहदे विच मिल गया, पर जे सी दी क्वेश्चन की गल करिए, ऑप्शन की गल करिए, ऑप्शन दा मीनिंग की कह रहा है, इट्स प्लांटेशन प्रोड्यूस, जिहड़ी इहदी प्लांटेशन है, इहदी खेती है। 17% दुनिया दी मीथेन, जो पूरी दुनिया दे विच मान लो जी 100% मीथेन एमिशन, मतलब मैथीन एक गैस है। ओके, मैथीन दी एमिशन हो रही है, बाहर निकल रही है पूरे एटमोसफेयर दे विच, पूरी दुनिया दे विच, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की गल की है। सो ये भी चीज़ां देखो, वर्ल्ड की गल हुई है, जिथे किसी कंट्री की गल हुई है। सो ये भी चीज़ां मतलब ट्रिक्स ही हो सकते हैं, तुसीं इन्हां नूं प्रॉपर तरीके नाल इन्होंने समझ लो कि प्रॉपर क्वेश्चन की है। सो इत्थे विच थोड़ी टिप्स ते ट्रिक्स काम नहीं आउणगीਆਂ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही तुहानूं समझ आएगी इसकी। ओके, टिप्स आपां करांगे बाद दे विच जदों तुहाडे कोल घੱਟ टाइम बचेगा, जां मान लो डिफिकल्ट है सिचुएशनस ने, बट उत्थे भी टिप्स प्लस आपां अंडरस्टैंडिंग दे नाल ही करना, आपां प्रॉपर फ्लूक नहीं लगाउणे। ओके, सो वर्ल्ड्स टोटल मीथेन एमिशन, देखो जी हुण मीथेन एमिशन आपां नूं मिल गया, ਹੁਣ ਇਹ मीथेन एमिशन आ गया, ਇੱਥੇ मीथेन एमिशन आ गया, वर्ड टू वर्ड अपन मिल गया। उस तो बाद आप ਇਹਦਾ मीनिंग ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ओके, 17% मिल गया, 17% मिल गया, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100% ਤੋਂ 17% ਜਿਹੜੀ मीथेन ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ? ਰਾਈਸ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ कि राइस की खेती 17% मीथेन गैस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हुण समझ गए कि मीथेन एमिशन हो रही है, मीथेन गैस मतलब बाहर निकल रही है। ओके, सो इजी राइस की खेती नाल। सो इत्थे बट जेहड़ी सेंटेंस नूं प्रॉपर वो करदे ने उन्हां दा प्लीज ध्यान रखिया करो। बट पर राइस पैडीज हैव अ डाउन साइड की है, डाउन साइड फैक्टर है दा नेगेटिव फॉर द प्लैनेट टू, प्लैनेट लई भी है। ओके, प्लैनेट की अर्थ की गल हुई है जी। दे प्रोड्यूस एज मच एज 17% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मीथेन एमिशंस। ये चीज प्रॉपर ये चीज सेम है जी। इन्होंने नेगेटिव की गल करी है, इत्थे भी इन्होंने नेगेटिविटी की गल करी है कि ये चीज नेगेटिव। अपना आ कीवर्ड भी मिल गया, आ जिहड़े कीवर्ड ने 1 2 3 4 ये भी अपन सारे इस दे विच मिल गए। सो अपना करेक्ट आंसर की है जी नहीं। ओके, सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 100% श्योर आ गया अपना ये आंसर आ गया, ये दोनों गलत ने, ये आंसर मिल गया भी चौथा छड्डो नहीं। आई वुड से कि चौथी ऑप्शन ना छड्डो, एक बार उन्होंने दोबारा देख लो, जेड़ा कि अपना लास्ट स्टेप है। ओके, 7th स्टेप है। एक बार इस चीज को देखो, फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ के उसका मीनिंग कड्डो। मे भी कोई जिवें कोई बट आ गया, हाउएवर आ गया, इस तरीके के वर्ड्स आ गए, ट्रिकी वर्ड्स आ गए, जिस तरीके नाल तुसीं कंफ्यूजन हो सकती है। मे भी तुसीं आंसर ते बिल्कुल क्लोज होवो ते तुसीं ऑप्शन टाइम टू टाइम कोई होर चूज कर लो कि शायद ये होवे। ओके, सो प्लीज हैसन करना, काली नहीं करनी, डोंट हैसन, डोंट रश प्लीज। सेंटेंस फॉर्मेशन ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रॉपर समझण ਦੀ कोशिश करो। ਇਹ कीवर्ड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। सेंटेंस ਦੀ जो फॉर्मेशन है वो ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ खुद ही है। ओके, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया कि सी आंसर इज करेक्ट, बट फिर भी ਆਪਾਂ 4th ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। राइस हैज जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉर्ट SUSIBA2, इन्हों आप सुसीबा कह लो, सुसीबा 2 खुद ही अंडरस्टैंडिंग लिए आप वर्ड्स ਨੂੰ किसी तरीके नाल भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लिए आप बोल सकते हैं। ओके, डजंट मैटर, कॉमा व्हिच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखो जी
सुसी बाय 2 आ गया, कॉमा विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये चीज कॉमा तो बाद जो चीज होंगी है, ये चीज इस चीज को डिफाइन कर रही है। पंक्चुएशन काफी ज्यादा जरूरी ने, राइटिंग दे विच भी जरूरी ने, हरेक किते जरूरी ने पंक्चुएशन, ठीक है। कॉमा तो बाद जो चीज है, ये चीज इस चीज को डिफाइन कर रही है जी, ओके। सो अपना कीवर्ड की है राइस, तो मे बी उत्थे सीगा राइस, इत्थे सीगा राइस। राइस अपना मेन कीवर्ड नहीं हैगा, मेन कीवर्ड दे विच छड्डो, राइस अपना मेन कीवर्ड नहीं हैगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो अपना मेन कीवर्ड है, सब तो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अपना है सुसी बाय 2, क्योंकि ये कीवर्ड आपको इस पैसे दे विच मिलूगा ही मिलूगा। जिवें कि हाँ जी, ये 17% नाल दी नाल मिल गया भी, ये पढ़ा मैंने याद सीगा कि 17% मैं पढ़ा, नाल दी नाल मैं इधर चल गया कि आ चीज इत्थे सीगी, मैनू लोकेशन मिल गई। उस तो बाद मैं खुद ही अंडरस्टैंडिंग नाल 3 बारी 4 बारी पढ़ के उसका मीनिंग कट के, उसका जिस्ट कट के प्रॉपर फिर मैं आंसर सही कर लिया। इसी तरीके नाल आंसर अपना सही है, ओके। सो हुण चौथी दी गल करिए, राइस है जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉर्ट। राइस की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है सुसी बाय 2। सुसी बाय 2 की है जी, नहीं समझ आ रहा छड्डो। विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, जेड़ा कि सेहत लई नुकसानदायक है, ओके। सो ये अपना कीवर्ड है। कीवर्ड देखो, ये स्कैनिंग है जी, स्कैनिंग कर रहे हैं आप, ओके। कीवर्ड अपन मिल गया, अपन लोकेशन मिल गई। हुण ये पहले देखना कि ये चीज का जिहड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस शुरू कित्थों हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है जी इत्थों, ओके। इत्थे तां आपां पहला वाला खत्म करके हटे जिहड़ा क्वेश्चन सीगा, ऑप्शन सीगी, ओके। सो क्रिस्टर जैनसन कॉमा, क्रिस्टर जैनसन तो बाद कॉमा है, कॉमा का मीनिंग की है जी, जिवें आपां इहदे विच दस्सिआ कि कॉमा तो बाद यह चीज इसनूं डिस्क्राइब करदी है। सो ये चीज प्लीज इस चीज़ां नूं प्लीज भुल्लो ना, प्लीज रिमाइंड रखो इन्हां चीज़ां नूं, ओके। अ प्लांट बायोकेमिस्ट एट द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लैबोरेटरी का नेम है जी है पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल, बट अपन नूं पता लग गया कि क्रिस्टर जैनसन की है, कौन है। मे बी इस तरीके का भी क्वेश्चन तुहानूं आ सकता है, क्रिस्टर जैनसन की है, ओके। ये प्लांट बायोकेमिस्ट वो हुंदे ने जिहड़े आर्टिफिशियल ढंग नाल उन्हां दी सैल्स नूं आर्टिफिशियल ढंग नाल मतलब जीन्स दे विच प्लांटेशन उन्हां दी करदे ने, चाहे वो एनीमल दे विच होवे, चाहे वो फूड दी प्लांट दी होवे, ओके। उस तो बाद नेशनल लैबोरेटरी कॉमा स्पेंट द पास्ट 10 ईयर्स, क्रिस्टर जैनसन जो कि बायोकेमिस्ट है ये लैबोरेटरी दी, ओके। उन्हें की किया 10 साल अपने दिते की डेवलप कर ली, डेवलपिंग सुसी बाय 2। सुसी बाय 2 की है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट, आ चीज है। सो इस तो बाद तुहानूं कुछ समझ आया, सुसी बाय कॉमा विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट, बट हार्म की तो इन्होंने कोई गल ही नहीं की है जी। आई डोंट थिंक सो, मैं कोई वर्ड देखा नहीं है जिथे इन्होंने कोई हार्म या नेगेटिव की कोई गल करी होवे कि ये चीज नेगेटिव है। ए प्लांट बायोकेमिस्ट एट द पैसिफिक स्पेंट द पास्ट 10 ईयर्स, भी इन्होंने 10 साल लगाए सुसी बाय 2 डेवलप करने दे विच जिहड़ा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट है। सो ये चीज की है, इन्होंने अपोजिट दी है जी, ये चीज देख लो तुसीं, ऑप्शंस एक सही होएगी। सो ये चीज, ओके। सो पहला तो आप इधर आई उस दे विच आपां बाद च जाने, ये आप इहनूं कैंसिल करो। उस तो बाद ये चीज आप दोबारा पढ़ो, व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राइस, और स्टेट में चल के जो भी अपनी लोकेशन सी इसको दोबारा पढ़ो, ओके। तुसीं इत्थे आके बिल्कुल श्योर हो गए आ भी नहींगा आंसर, बट फिर भी थोड़े माइंड च होवे भी शायद किते ये ना होवे, ओके। तुसीं इत्थे आके जदों ये भी कैंसिल होगा तुसीं 100% श्योर हो गए कि थोड़ा सी आंसर करेक्ट आंसर है, ओके। सो ये सी अपने 7 स्टेप्स जिन्होंने फॉलो करके ये स्ट्रैटेजी है, इन्होंने फॉलो करके तुसीं MCQs के आंसर प्रॉपर वे दे विच दे सकते हो। सो इस तरीके की होर वीडियोज़ नूं देखण लई प्लीज सबसक्राइब करो, हिट द बेल आइकन। नैक्सट वीडियो दे विच आपां टिप्स लैके आवांगे MCQs दे। टिल देन गुड बाय, सत श्री अकाल, बाय।